Hello students, good morning. Myself Dr. Suman Sharma. Welcome in the BSc third year Organic Chemistry class. You know students, it's the pandemic time. I think you are safe at home and regularly watching the videos on college YouTube channel. I believe you are following and learning the topics being taught. In continuation of amino acids, today we start peptides. Now first is the peptide structure, right? And today we will discuss structure and nomenclature of peptides and proteins, right? Now first we discuss the structure of peptide. The most important reaction of amino acid is the formation of peptide bonds, right? Amines and acid can condense with the loss of water to form amides. Industrial processes often make amides simply by mixing the acid and the amine, then heating the mixture to drive off water, right? Here is the reaction. It is acid, it's react with amines and it gives salt, right? When this salt is heated in presence of amine, right? It is a amine. When it heat, then amide formation take place and pani or removal of water proceed the reaction, right? तो ये जो है इसका बेसिक कंसेप्ट है कि किस तरह से जो है वो एमाइड का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर जो है रिमूवल ऑफ वाटर टेक प्लेस, राइट? एमाइड्स आर द मोस्ट स्टेबल एसिड डेरिवेटिव्स. दिस स्टेबिलिटी इज पार्टली due to the strong resonance interaction between the non-bonding electrons on nitrogen and the carbonyl group, right? The amide nitrogen is no longer a strong base and the CN bond has restricted rotation because of its partial double bond character, right? The resonance form we use to explain the partial double bond character, right? And here is the partial double bond resonance stabilization of an amide accounts for its enhanced stability, the weak basicity of the nitrogen atom and the restricted rotation of the CN bond, right? In a peptide, the amide bond is called a peptide bond and it holds 6 atoms in a plane, and the C and O of the carbonyl and N and its H and the 2 associated alpha carbon atom. Now here is the structure of peptide, right? It is a peptide bond, it is a amide bond, right? यहाँ पर जो है हमने इसको ये स्ट्रक्चर देकर जो है पेप्टाइड का जो संरचना है वो बता रखी है, राइट? तो यदि हम बिल्कुल सिंपल वे में बात करें कि पेप्टाइड्स क्या होते हैं, तो पेप्टाइड क्या होते हैं? पेप्टाइड एमिनो एसिड्स के 2 अणु आपस में मिलकर के या संयुक्त होकर के डाई पेप्टाइड बनाते हैं. इस अभिक्रिया में एक एमिनो अम्ल का एमिनो समूह दूसरे अणु के कार्बोक्सिल समूह के साथ संघनन करके पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, राइट? और ये जो है यहाँ पर जो
हमने जो है अभी फर्स्ट जो है स्लाइड के अंदर उसकी रिएक्शन बता रखी थी, राइट। अब यदि पेप्टाइड बंध द्वारा 3, 4 या उससे अधिक एमिनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड्स, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। Character and restricted rotation of an amide bond, right? In a peptide, this partial double bond character results in 6 atoms being held rather rigidly in a plane, right? Having both an amino group, right, and a carboxyl group. This is a carboxyl group and this is a amino group. An amino acid is ideally suited to form an amide linkage, ठीक है। अभी हमने बताया पिछली जो है स्लाइड के अंदर amide linkage. Under the proper conditions, the amino group of one molecule condense with the carboxyl group of another, right? The product is an amide called a dipeptide because it consists of 2 amino acids, ठीक है। इसको हम डाइपेप्टाइड कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है 2 एमिनो एसिड्स के जो मॉलिक्यूल है वो आपस में जुड़ के डाइपेप्टाइड का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। द एमाइड लिंकेज बिटवीन द एमिनो एसिड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। ऑल्दो इट हैज़ अ स्पेशल नेम, a peptide bond is just like other amide bonds we have studied, right? ये यहाँ पर हमने इसको बता रखा है, लॉस ऑफ वाटर है यहाँ पर जो है फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड टेक प्लेस, राइट। इन दिस मैनर एनी नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स कैन बी बॉन्डेड इन अ कंटिन्यूअस चेन, राइट। अ पेप्टाइड इज ए कंपाउंड containing 2 or more amino acid linked by amide bonds, ठीक है। पेप्टाइड के अंदर क्या होता है, 2 या 2 से अधिक एमिनो एसिड्स जो हैं वो एमाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं बिटवीन द एमिनो ग्रुप ऑफ ईच एमिनो एसिड्स एंड द कार्बोक्साइल ग्रुप ऑफ द नेबरिंग एमिनो एसिड्स, राइट। ईच एमिनो एसिड यूनिट इज द पेप्टाइड इज कॉल्ड रेजिड्यू, ओके। A polypeptide is a peptide containing many amino acid residues but usually having a molecular weight of less than about 5000, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर बहुत सारी जो है एमिनो एसिड्स जो रेजिड्यू हैं वो जुड़े रहते हैं, लेकिन उसका जो मॉलिकुलर वेट है वो क्या है, लेस देन 5000 होता है। ये यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो होती है पॉलीपेप्टाइड्स के लिए, राइट। प्रोटीन्स कंटेन मोर एमिनो एसिड यूनिट्स, प्रोटीन जो है उसके अंदर भी बहुत सारी एमिनो एसिड यूनिट्स होती हैं अमीनो एसिड की, विद मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम अबाउट 6000 टू अबाउट 40,000,000, राइट। इतना जो है, इतना प्रोटीन्स के अंदर जो है जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। एमिनो एसिड की बहुत सारी यूनिट्स जो है वो जुड़ी रहती हैं और ये रेंज कहाँ तक होती है, 6000 से लेकर जो है वो 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है ना, इतनी जो है, इतना जो है, इतने मिलियंस के अंदर जो है इसमें एमिनो एसिड्स यूनिट्स जुड़ी रहती हैं। द टर्म ओलिगोपेप्टाइड इज़ ओकेजनली यूज फॉर पेप्टाइड, इसको ओलिगोपेप्टाइड्स को हम बहुत कभी कभी यूज़ में लेते हैं इस टर्म को, कंटेनिंग अबाउट 4 to 10 एमिनो एसिड रेजिड्यूज, ठीक है ना। ओलिगो जो पेप्टाइड है उसके अंदर 4 से लेकर 10 तक एमिनो एसिड रेजिड्यूज जुड़े रहते हैं। शोज द स्ट्रक्चर ऑफ नॉन पेप्टाइड ब्रेडिकिन, a human hormone that helps to control blood pressure, ठीक है ना। ये क्या है, ये जो एक हार्मोन होता है और ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, राइट। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड।
ये यहाँ पर हमने इसका स्ट्रक्चर बता रखा है। ये बहुत सारे जो है ये हमने पढ़े थे अभी पिछले टर्न पे, एमिनो एसिड्स जो हैं उसकी जो बहुत सारी यूनिट्स आपस में जुड़ी रहती हैं। यदि 4 से लेकर 10 एमिनो एसिड्स जुड़े रहते हैं तो हम उसको ओलिगोपेप्टाइड्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये एन टर्मिनस है और यहाँ पर ये सी टर्मिनस है। यहाँ पर इट्स अ एन टर्मिनस और ये है सी टर्मिनस। द ह्यूमन हार्मोन ब्रेडिकिन, राइट, ये क्या, ह्यूमन हार्मोन ब्रेडिकिन इज़ अ नॉन पेप्टाइड with the free NH3 at its N terminus and a free COO at its C terminus। ठीक है, ये जो है स्ट्रक्चर है ये किसका है, ब्रेडिकिन। यहाँ पर जो है एक जो है टर्म उस पर जो है एक सिरे पर तो आपका फ्री NH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसको हम एन टर्मिनस का नाम देते हैं, और दूसरा जो एंड होता है वहाँ पर जो है फ्री COO माइनस जो है ग्रुप जुड़ा रहता है और इसको हम सी टर्मिनस का नाम देते हैं। ये क्या है, एक ह्यूमन हार्मोन है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। द एंड ऑफ द पेप्टाइड विद द फ्री एमिनो ग्रुप NH3 plus is called the N terminal, right, end और द एन टर्मिनस, इसको या तो एन टर्मिनल एंड कहते हैं या उसको एन टर्मिनस कहते हैं। एंड द एंड विद द फ्री कार्बोक्साइल ग्रुप COO माइनस इज कॉल्ड द सी टर्मिनल एंड और द सी टर्मिनस, राइट। ये अभी हमने पिछली स्लाइड के अंदर देखा है। पेप्टाइड स्ट्रक्चर्स आर जनरली ड्रॉन विद द N terminus एट द लेफ्ट एंड द C टर्मिनस एट द राइट। ठीक है ना, पेप्टाइड का जब हम स्ट्रक्चर लिखते हैं तो हम ऑलवेज जो है N टर्मिनस को हम लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं और C टर्मिनस को राइट हैंड साइड पर लिखते हैं। ये क्या है, इसका एक नॉमेनक्लेचर का तरीका है, किस तरह से इसको हम नामकरण करते हैं, राइट। अब आता है पेप्टाइड का नॉमेनक्लेचर, पेप्टाइड का किस तरह से जो है नामकरण किया जाता है। द नेम्स ऑफ पेप्टाइड्स रिफ्लेक्ट द नेम ऑफ द एमिनो एसिड रेजिड्यूज इन्वॉल्व इन द एमाइड लिंकेज, राइट। पेप्टाइड्स के अंदर जो है बहुत सारे एमिनो एसिड जो रेजिड्यू है वो जुड़े रहते हैं थ्रू एमाइड लिंकेज, राइट, बिगनिंग एट द एन टर्मिनस, और ये एन टर्मिनस से स्टार्ट होते हैं। All except the last are given the YL suffix of acyl groups, right। यदि acyl groups जो है उसके लिए हम YL जो है suffix को काम में लेते हैं। For example, the following dipeptide is named alanine serine, right। जो जितने भी डाइपेप्टाइड हैं उसका जो नाम है हम एलिनाइल सीरीन देते हैं। ठीक है, इट इज़ अ एलेनाइल और it is a serine. The alanine residue has the YL suffix because it has acylated the nitrogen of serine, right। यहाँ पर हम इसको जो है एलेनाइल का नाम देते हैं और यहाँ पर ये सीरीन का नाम देते हैं। टोटल इसका जो है जब नामकरण करते हैं तो हम इसको एलासर भी बोल सकते हैं, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पता आता है आर्जिनाइल, प्रोलाइल, प्रोलाइल, ग्लेसाइल, फिनाइल एलेनाइल, सिराइल, प्रोलीलाइल, फिनाइल एलाइल, आर्जिनिन, ये सब क्या है, एमिनो एसिड लिंकेजेस हैं, राइट। दिस इज अ cumbersome and awkward name, right। A shorthand system is more convenient representing each amino acid by its 3-letter abbreviation। ठीक है ना, ये जो नाम है इनके तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जब भी इसका हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो आगे के जो 3 लेटर हैं उनको ले लेते हैं और उसी फॉर्म में उसको एब्रीवेशन के रूप में लिख देते हैं। फर्स्ट 3 जो हैं अल्फ़ाबेट्स उसके काम में लिए जाते हैं। दीज एब्रीवेशंस
are generally the first three letters of the name, right? Once again, the amino acids are arranged from the एन टर्मिनस, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर हमेशा एन टर्मिनस को लिखा जाता है एट द लेफ्ट टू द सी टर्मिनस एट द राइट, और राइट हैंड साइड पर जो है सी टर्मिनस लिखा जाता है. ब्रेडिकिनिन हैज़ द फॉलोइंग एब्रीवेटेड नेम्स, ठीक है, ये जो ह्यूमन हार्मोन है ब्रेडिकिनिन, उसका जो है एब्रीवेटेड जो नाम है वो हम ये देते हैं. क्या है ये? आर्ग प्रो ग्लाई फी सर प्रो फी आर्जिनिन, राइट. ये इसका जो है यहाँ पर हमने शॉर्ट फॉर्म लिख रखा है. फर्स्ट जो है 3 अल्फ़ाबेट्स जो है यहाँ पर नॉमेनक्लेचर में हम यूज़ करते हैं, राइट. सिंगल लेटर सिंबल्स आर बीइंग वाइडली यूज्ड एज वेल यूजिंग सिंगल लेटर्स. वी सिम्बलाइज ब्रेडिकिनिन बाय, राइट. अब हम यदि इसको सिंबॉलिक नाम देना चाहेंगे तो यहाँ पर इसके सब का ये जितने भी जो है एमिनो एसिड्स जो यूनिट्स हैं उनका सब का जो है फर्स्ट केवल एक अल्फ़ाबेट हम लेंगे और उस हिसाब से जो है हम इसका जो है सिंबॉलिक नेम देंगे, राइट. यहाँ पर क्या है? आर पी पी जी एफ एस पी एफ आर. It is the symbolic name of bradykinin hormone, right? Okay. Now, अब आती हैं दूसरी तरह की जो यदि हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो उसके अंदर आता है डाइसल्फाइड लिंकेजेस. ये क्या होती हैं? एमाइड लिंकेजेस यानी पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्म द बैकबोन ऑफ द एमिनो एसिड चेन्स वी कॉल पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स, राइट. A second kind of covalent bond is possible between any cysteine residue presents, right. Cysteine residue can form disulfide bridges, also कॉल्ड डाइसल्फाइड लिंकेजेस, ठीक है. सिस्टीन रेजिड्यू जो है वो बनाता है डाइसल्फाइड ब्रिजेस या डाइसल्फाइड लिंकेजेस विच कैन जॉइन 2 चेन्स और लिंक अ सिंगल चेन इनटू अ रिंग, राइट. माइल्ड ऑक्सीडेशन जॉइंस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अ थायोल इनटू अ डाइसल्फाइड, राइट, forming a disulfide linkage between the 2 thiol molecules. It's a thiol molecule. The reaction is reversible and a mild reduction cleaves the disulfide, right. यहाँ पर डाइसल्फाइड लिंकेज फॉर्मेशन की रिएक्शन हमने दे रखी है. इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन. 2 moles of thiols RSH प्लस RSH, राइट. इसका ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पर डाइसल्फाइड बनता है और पानी निकल जाता है. जब इस डाइसल्फाइड का रिडक्शन होता है तो वापस से हमको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ थायोल्स मिल जाते हैं, राइट. ये अभी हमने जब सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड्स पढ़े थे तब उसके अंदर थायोल्स के बारे में बताया था कि डाइसल्फाइड का फॉर्मेशन होता है, राइट, ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ थायोल्स. तो इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन और इट्स अ रिवर्सिबल प्रोसेस, राइट. इस तरह से जो है डाइसल्फाइड लिंकेजेस बनती हैं. सिमिलरली 2 सिस्टीन सल्फहाइड्राइल, राइट, SH groups are oxidized to give a disulfide linked pair of amino acids, right. This disulfide linked dimer of cysteine is called cysteine. Formation of a cysteine disulfide bridge linking 2 peptide chains. Okay, now come to the next slide. अब यहाँ पर हमने पेप्टाइड चेन बता रखी है, ठीक है. इट्स अ पेप्टाइड चेन, ओके. जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पर सिस्टीन डाइसल्फाइड ब्रिज बन जाता है, राइट.
ये क्या है, रिडक्शन होता है, इट्स अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ऑक्सीडेशन होता है और फिर यहाँ से जो डाइसल्फाइड है उसका रिडक्शन होता है, तो वापस से हमको 2 सिस्टीन मॉलिक्यूल्स रेजिड्यू मिल जाते हैं, राइट। सिस्टीन अ डाइमर ऑफ cysteine, a dimer of cysteine results when two cysteine residues are oxidized to form a disulfide bridges. Okay, two cysteine residue may form a disulfide bridge within a single peptide chain. Okay, making a ring. Okay, the structure of human oxytocin, a peptide hormone that causes contraction of urine, smooth muscles and induce labor. Okay, oxytocin is a non-peptide with 2 cysteine residue at position 1 and 6, right. Linking part of the molecule is a large ring. In drawing the structure of a complicated peptide, arrows are often used to connect the amino acids, showing the direction from N terminus to C terminus, right. Notice that the C terminus of the oxytocin is a primary amide, it's a glycine, right, and rather than a free carboxyl group. Okay, now come to the next slide. ये यहाँ पर हमने इसको बता रखा है, ठीक है, पूरा जो है इसका स्ट्रक्चर बना रखा है, पेप्टाइड लिंकेज है, कहाँ पर जो है इनकी ब्रेकिंग होती है, ठीक है ना, दीज आर द जो है ब्रेकिंग पॉइंट्स जो है, ठीक है। ओके, तो ये है सिस्टीन डाइसल्फाइड ब्रिज, ये पूरा हमने बता रखा, इट्स अ एन टर्मिनस एंड इट्स अ सी टर्मिनस, यहाँ पर जो है वो एमाइड फॉर्मेशन होता है। ओके, it's a C N terminus and it's a C terminus and amide form. Structure of human oxytocin, a disulfide linkage holds part of the molecule in a large ring. Okay, this is a very large ring, right. Now come to the next slide. अब यहाँ पर हमने इसको और भी जो है वो बता रखे हैं, सारे जो अमीनो एसिड्स हैं उनका किस तरह से लिंकेज होता है विद द फॉर्म ऑफ पेप्टाइड चेन, राइट। स्ट्रक्चर ऑफ, इट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हार्मोन इन ह्यूमन बॉडी, राइट। इंसुलिन जो है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन, 2 चेन्स आर जॉइंड एट 2 पोजीशन बाय डाइसल्फाइड लिंकेजेस, ओके, एंड अ थर्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड होल्ड्स एंड अ चेन इन अ रिंग, राइट। एन टर्मिनस, इट्स अ सी टर्मिनस, यहाँ पर एक चेन, ए चेन एंड बी चेन, राइट, इट्स अ एन टर्मिनस और इट्स अ सी टर्मिनस। Okay, it's a total structure of insulin, right. Now come to the next slide. The structure of insulin, a more complex peptide hormone that regulates glucose metabolism, right. ये हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलराइज करता है। Insulin is composed of 2 separate peptide chains, right, and A chain containing 21 amino acid residues and the B chain containing 30 amino acids residues, right. The A and B chains are joined at 2 positions by disulfide bridges, okay, and the A chain has an additional disulfide bond that holds 6 amino acid residues in a ring, right. Now the C terminal amino acids of both chains occur as primary amides, right. Disulfide bridges are commonly manipulated in the process of giving hair a permanent wave,
right? Hair is composed of protein which is made rigid and tough partly because disulfide bonds, right? When hair is treated with a solution of a thiol such as 2-mercaptoethanol, the disulfide bridges are reduced and cleaved. Okay, the hair is wrapped around curls and the disulfide bonds are allowed to reform either by air oxidation or by application of a neutralizer, right? The disulfide bonds reform in a new positions, holding the hair in the bent conformation and forced by the curls. Okay. Thanks, dear students.